ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اس وقت ٹینشن بہت زیادہ چل رہی ہے۔ ملک ہندوستان کی جانب سے کئی سارے بڑے فیصلے لیے گئے ہیں۔ آپ کو بتا دوں کہ کل جو ہے ایک ہائی سیکیورٹی لیول میٹنگ جو ہے پی ایم نریندر مودی کی جانب سے بلائی گئی ہے، اس میں کئی سارے بڑے فیصلے بھی لیے جا سکتے ہیں۔ اوورآل کیا کچھ سچویشن ہے، کیا کچھ حالات بنے ہوئے، اس کے اوپر جو ہے ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے موجود ہے تزکیہ نگار تجمل اسلام جی۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ جاوید صاحب۔ سر کیا لگتا ہے جس طریقے سے پہلگام اٹیک ہوا ہے اور پہلگام اٹیک کے بعد سچویشن جس طریقے سے بنی ہوئی ہے، ٹینشن بہت زیادہ ہو چکی ہے، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ کل ایک کریوشل میٹنگ جو ہے وہ بلائی جائے گی اور اس میں کئی سارے بڑے فیصلے لیے جا سکتے ہیں جو کہ کہیں نہ کہیں بڑا بدلاؤ ہوگا جموں کشمیر میں نہیں بلکہ پورے ہندوستان کو لے کر۔ دیکھیے، جموں کشمیر میں جس طرح سے سرحدی تناؤ ہم نے پہلے بھی دیکھا اور اس کے بعد ایک فضائی اور ہوائی حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ہمسایہ ملک کی جانب سے، لیکن اس کے بعد لگاتار مسلسل جو خارجی سطح پہ مذاکرات کو بحال کرنے کی کوشش کی گئی اور کسی نہ کسی طریقے سے سچویشن کو ڈی ایسکیلیٹ کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی، جس کے لیے ہندوستان پاکستان کے بیچ میں بارڈرز پہ جو رینجرز ہیں اور بارڈر سیکورٹی فورس کے بیچ میں جو سرحد پہ تناؤ موجود تھا اس کو کسی حد تک قابو میں رکھا گیا۔ لیکن جب پہلگام آتے آتے تقریباً ساری یہ کوششیں جو تھی وہ رائے گاں ہوئی، ضائع ہوئی، اور دونوں ممالک کے بیچ میں خطے کو استوار کرنے کے بجائے صورتحال تناؤ تر صورتحال سے اس وقت جموں کشمیر اور ملک کے دونوں حصے جو ہیں اس وقت موجود ہے۔ لیکن کیا آنے والے وقت میں چونکہ ہر چیما گویا جو سچویشن آج آف بیٹ جو ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز ہے ان کو کسی طرح سے فی الحال سیاحوں کو کہا گیا کہ وہاں نہ جایا جائے، بلکہ جو اوپن ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے وہاں پہ فی الحال کوئی اس طرح کی ایڈوائزری نہیں ہے، جس میں سے 90 میں سے 48 ایسی ڈیسٹینیشنز ہے جن کو فی الحال کہا گیا کہ ٹورسٹ آف بیٹ لوکیشن میں نہ جائے۔ اس کے کئی ایک وجوہات ہیں، اور سیکیورٹی صورتحال کی وجہ سے جب ہم ان آف بیٹ لوکیشن کو دیکھیں جس میں حبا خاتون کا ایریا شروع ہوتا ہے، دودھ پتری کا اور باقی جگہوں کا، ہو سکتا ہے کہ گھنے جنگلات میں ایل او سی کے نزدیک کوئی مومنٹ ہو، کوئی اس طرح کا کسی حد تک در اندازی کی کوشش کی گئی ہو، جس کا غالباً مطلب ہے کہ ٹورسٹ کو سیکیورٹی کور اتنی دیر تک اتنی دور تک فراہم کرنے کے بجائے کہتے ہیں نا کہ بیماری میں آپ کو دوا سے زیادہ احتیاط کی ضرورت کرنی پڑتی ہے، وہی فارمولا حفاظتی عملے نے اپنا رکھی ہے۔ لیکن چونکہ سرحد پہ جس انداز سے پاکستان نے اپنے فضائی حدود کو اور ان جگہوں پر جہاں سے ہم نے دیکھا کہ چاہے وہ 1965 ہو، 47 ہو، اس کے بعد کے ڈیکیڈز میں جو جنگیں ہوئی ہو، حالانکہ مختصر جنگیں ہوئی، لیکن ان جگہوں کو اور زیادہ سرحد کے اس طرف بہت زیادہ محتاط طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن سرحد کے اس طرف کیا کچھ چل رہا ہے اور ملک ہندوستان جو ہے وہ باہمی مذاکرات میں کیا اب بھی یقین کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ فارسی کا مقولہ ہے آزمو در آزمو دست، ایک مرتبہ کسی شخص کو آزمایا گیا ہو دوبارہ آزمانے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے۔ لیکن اب تمام تر نظریں جو ہے وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، وزیر داخلہ امت شاہ جی اور باقی جو وزارت ہیں، انہوں نے اپنے کابینہ فیصلوں میں آل پارٹی میٹنگ میں کیا فیڈ بیک حاصل کیا ہو، جو ہمیں اطلاعات ہیں ان کو ذرا شیئر کریں کہ جموں کشمیر کے لوگ اس وقت اس پرتناؤ اور مخدوش صورتحال کے بیچ میں کس طرح کے پروگرام کو آگے دیکھ پا رہے ابھی سے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 1 سے 10 مئی تک بڑا کروشل ہوگا، اور دفاعی ذرائع جو ہمیں بتا رہے ہیں اس کے مطابق 1 مئی سے 10 مئی تک جو ہے صورتحال جو ہے وہ بہت زیادہ سنگین ہو سکتی ہے۔ لیکن صورتحال سنگین ہو سکتے ہیں لیکن قابو میں ہے۔ لیکن کل ملا کر پاکستان کے لیے، بھارت کے لیے جو بین الاقوامی سطح پہ مشاورت اس وقت ہے، اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو جنگ ہوگی اس میں دونوں ملکوں کو نقصان ہوگا، اور بہتر ہوگا کہ پہلگام جیسے واقعے کے بعد جس کی ہر طرف سے مذمت کی گئی، کنڈمنیشن کی گئی، نندا کی گئی، اور اس کو پاکستان میں بھی بھارت میں بھی ہر جگہ پر جتنے بھی ڈپلومیٹک لیول پر لوگ بیٹھے ہیں وہ اس کو مذمت تو کرتے ہیں، لیکن دونوں ملکوں کے بیچ میں امید کی جاتی ہے کہ صورتحال جو ہے وہ جنگی خطرات سے نکل کر واپس امن کے راہوں کو تلاش کرنے کے لیے دونوں ممالک کے سربراہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ایک طرف ایک کوشش کریں، اس کے بعد رزلٹ مجھے لگتا ہے کہ دونوں ملکوں کے حق میں بہتر ہوگا۔ جی سر، آپ سے یہ جانیں گے اوورآل جب یہ سچویشن کا جب ذکر ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں
खाली हिंदुस्तान में नहीं बल्कि बाकी मुल्क भी जो है वो हिंदुस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि आप जी इसका मुंह तोड़ जवाब दीजिए। सो आपको लगता है कि जिस तरीके से आप आर्मी को कहीं ना कहीं उनके हाथ खोल दिए गए हैं और इससे कई सारी चीज़ें जो है वो हक में आ सकती है, कश्मीर के हक में, जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में या फिर सेफ्टी के हक में? देखिए, जब आप इस जंग की बात करें, मुख्तर जो हम कयास आ रहा है लगा रहे हैं कि शायद दोनों मुल्कों के बीच में शायद किसी भी सतह पे, चाहे वो कम लेवल का हो या हाई इंटेंसिटी का हो, कोई मुख्तर इस तरह की झड़पें देखी जा सकती है। लेकिन जो दोनों मुल्कों के बीच में, क्योंकि जम्मू कश्मीर इस वक्त यूनियन टेरिटरी में जो ज़ेर इंतजाम इलाका हमारा है, इसमें यकीनन जो इस वक्त वज़ीर आला के इख्तियारात हैं वो महदूद हैं, और जो पहले लामहदूद हुआ करते थे। जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, कोई भी कानून पार्लियामेंट का, सुप्रीम कोर्ट का, इसका इतलाक बराह रास्त जम्मू कश्मीर के वासियों पर नहीं होता था। एक फायदा ये मरकज को है कि आज फैसला जो भी लेने हैं वो ज्यादा मशावरत की जरूरत जम्मू कश्मीर में नहीं है। दूसरा ये कि जो दोनों मुल्कों के बीच में रिश्ते बहुत ज्यादा मखासमत से गुजर रहे हैं और मतसादिम दोनों ममालिक चल रहे हैं, गालिबन इसका एज ये है कि इससे पहले भी जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो उसके बाद उतना ज्यादा तनाव दोनों मुल्कों के बीच में नहीं हुआ। और जो पहले ही हमने देखा कि जो एडवाइजरी जारी कर दी गई, जिसमें भारतीय सरकार ने मुकम्मल तौर पर लोगों को, शहरियों को वापस जाने का मशवरा दिया, जो उस तरफ हो या इस तरफ हो वो बिलतरतीब अपनी अपनी जगहों पे वापस जाएं। दूसरी तरफ दोनों मुल्कों के बीच में जो सबसे बड़ा जो आदि एग्रीमेंट था दोनों मुल्कों के बीच में, और उसको खत्म करने के बाद जो इस वक्त सियासत बैनुल अक़वामी सतह पे दोनों मुल्कों की देखी जा सकती है, यानी इतने हार्ड स्टेप्स उठाने के बाद जो अगली सुबह है वो दोनों मुल्कों के बीच में दोस्ती के बजाय और ज्यादा रंजिशों के बीच में गुजर सकता है। यानी दोनों मुल्कों के शहरियों को, दोनों मुल्कों के अफवाज को, जिस तरह से आप कहते हैं कि किसी एक मुल्क को ज्यादा सबकत हो सकती है, ज्यादा ममालिक उसको साथ दे सकते हैं, लेकिन जावेद साहब हमें इस चीज को देखना होगा कि ये रशिया और यूक्रेन के बीच का वार नहीं है जो मशावरत के बगैर शुरू हुआ और मशावरत के बगैर खत्म हुआ। ये वो वार नहीं है जो आप मशरिक की वुस्ता में इसराइल और फलस्तीन के बीच में देखते हैं, जो बैनुल अक़वामी सतह की आरा को मजमुई तौर पर नजरअंदाज करके शुरू किया जाता है और खत्म भी किया जाता है। जम्मू कश्मीर की सरहदों के बीच में भारत और पाकिस्तान के बीच में सबसे बड़ा एडवांटेज ही डिसएडवांटेज है। दोनों मुल्क जो है वो इस वक्त न्यूक्लियर पावर है। दोनों मुल्कों के बीच में जहां ट्रंप इंतजामिया वहां चाइना की इंतजामिया भी है। दोनों मुल्कों के बीच में लद्दाख की जमीनी जगराफियाई तनासुब भी आपको देखना होगा। दोनों मुल्कों के बीच में जो फौजी ताकतें हैं, जो फौजी मशकें इस वक्त देखी जा सकती है, वो कितने दिनों और कितने महीनों तक चल सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि दोनों मुल्कों के बीच में लड़वाने का काम कोई और मुल्क कर रहा हो, कोई और ताकत कर रहा हो। और ये भी पाकिस्तान बारहा कहता है। मुझे याद आ रहा है जावेद साहब, जिस वक्त जम्मू कश्मीर के सरहदों के बाद जनूबी कश्मीर के लतपोरा पुलवामा में हमला हुआ था हिफाजती अमलों के ऊपर, इमरान खान ने उस वक्त एक मशवरा दिया था, जो वजीर आजम हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए इंडिया और पाकिस्तान की, और हमले की उन्होंने मजम्मत की थी। कहा कि किसी भी किताब में आपको इसका तर्जुमा नहीं मिलेगा कि आम शहरियों पर, सिक्योरिटी फोर्स पर आप उन पे हमला करेंगे। लिहाजा जो वो मामला टल गया बाद में, फिर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कशीदगी बहुत ज्यादा बढ़ गई, वजारत खारजा के ताल्लुकात जो थे वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुए, वज़ीर आज़म लेवल पर कोई दौरा नहीं हुआ, आईपीएल में टीमों को अलग अलग कर दिया गया, पाकिस्तान के किसी भी खिलाड़ी की नीलामी या बोली नहीं लगाई गई। इस तरह से जो सूरत हाल हमने देखी, यकीनन जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बेहतर ताल्लुकात, भले ही वो मुश्किल दौर से गुजर रहे हों, लेकिन बेहतर ताल्लुकात की जमानत जो है वो यकीनन अमन की सूरत हाल से हमें नजर आएगी। लेकिन फिलहाल जो दोनों मुल्कों के बीच में जो इस वक्त एग्रीमेंट्स को खत्म कर दिया गया, और उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी के एग्रीमेंट से शुरू करें, जो शहरियत, जो सीमा जैसी पाकिस्तानी नजात यहाँ पे रहने आई थी, यहाँ के लोग वहाँ रहने लगे थे, शादियां हुई थी, रिश्ते हुए थे। नहीं, उसके बाद जावेद साहब पहलगाम के इस वाकये के बाद जो एक नई सीरीज शुरू हुई है आजकल, जिसमें कई जगहों पर हमने देखा कि जो सरहद पार उस तरफ एक्टिव मिलिटेंट्स मौजूद हैं, उनके यहाँ पे जो
अहले खाना जिस जगह जो रिहायशी इलाके में रहते थे उन मकानों को भी जिस तरह से खत्म किया जा रहा है, बलडोज किया जा रहा है और जिस तरह से काफी गिरफ्तारियां भी हुई है, ये भी इसी जंग के आसपास में इसके नशीबो फराज है। और यकीनन जो सूरत हाल इस वक्त है दोनों मुल्कों के बीच में, मुझे आज भी मैं जिन जगहों से गुजर के आया, अभी बांडीपोरा से होके आया, फिर श्रीनगर के कई इलाकों में हुआ, घर पहुंचते पहुंचते यकीनन एक शहरी दूसरे शहरी से कहते थे अशमश नून चाय तीर सटाक विटाक था उन घर करे, यानी हमें स्टॉक की जरूरत तो नहीं होगी घरों में। ज्यादा मुझे लगता है कि जो धारा टूटने के वक्त अनप्रेडिक्टेबल चीजें बाद में हुई और जिनकी प्रिडिक्शन नहीं की गई थी पहले, वो जो हुई उस चीज का मुशाहिदा आम लोग कर रहे हैं। और मुझे यकीन है कि बैनुल अक़वामी सतह पर अमेरिका और बाकी जो बड़े ममालिक है, बड़ी ताकतें हैं, उनका बयान इस वक्त बड़ा मायने रखता है, जिसके लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान की इस मखलूज सूरत हाल से किसी न किसी हद तक इसके दबाव को कम किया जा सकता है। लेकिन मोदी इंतजामिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि पहलगाम के इस दहशतगर्दी के वाक़े के बाद क्या जवाब दिया जाएगा, किस तरह का जवाब दिया जाएगा। और जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एहलकार गलती से सरहद के उस पार चला गया, उसके बाद भी सिक्योरिटी सूरत हाल को और ज्यादा मामला देखने होंगे। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के इन ताल्लुकात की जमानत और इन आने वाले वक्त में किस तरह की सूरत हाल होगी, अगला हफ्ता बड़ा क्रूशल होगा। मई का पहला हफ्ता 1 से 10 तक जो है वो दोनों मुल्कों के बीच में अगर किसी हद तक दरी पर्दा ही सही ताल्लुकात मजीद बेहतर हुए, लेकिन यकीनन क्योंकि मोदी इंतजामिया और जिस अंदाज से उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान को डील किया था और अपने मैनिफेस्टो में पहले रखा था कि मुजफ्फराबाद को हमें वापस लाना है, वो भी एक चैप्टर है। और मुजफ्फराबाद को वापस लाने के लिए जो पहलगाम का जो वाकया बदकिस्मती से पेश आया, मुझे लगता है कि मोदी इंतजामिया पर भी जो इस वक्त उनके वादे थे उनको किस तरह से अमली जामा वो पहना सकते हैं, या एक बड़े स्टेट्समैन का एक बड़ा स्ट्रक्चर दिखाकर ममालिक के बीच में जो ताल्लुकात जो इन्फरादियत इज्तिमाई पर हावी होती जा रही है मशावरत में, उसको किस तरह से खत्म किया जा सके और एक बार फिर दोनों मुल्कों के बीच में माहौल मामूल पे आ जाएगा। सर सिचुएशन बॉर्डर्स पे किस तरीके की बनी है, जो बाउंड्रीज एरिया हैं किस तरीके की सिचुएशंस हैं? देखिए इन दिनों चूंकि जो नेशनल चैनल्स के रिपोर्टर्स हमसे मिले या उनसे मुलाकातें हुई हमारी LOC की तरफ, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ, इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ, और इस तरह की जो सरहदी दोनों मुल्कों के बीच में सरहदी तनाव है, हमारे मुल्क से अभी इस तरह की कोई सिचुएशन हमें उस लेवल की नजर नहीं आती है। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, अगर आपको याद होगा, हम पला चले थे, साथ साथ थे, उस वक्त उड़ी से और बाकी जगहों से फौजी काफिले को, कानवाई को वहां से भारी हथियारों से लेस तोपों के साथ इन इलाकों की तरफ मशक करते हुए देखा गया। लेकिन कुछ दिनों से फजाई हुदूद में हमने बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स और चॉपर्स की रातों के दौरान भी आवाजें सुनी। लेकिन उस तरह की सूरत हाल इस मुल्क की तरफ से, क्योंकि मुल्क ने जो वादा किया है कि जो इस मुल्क के शहरियों के साथ इस तरह के मामला पैदा करेगा उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। गो के सरहद का उस तरफ का जो एरिया है जिन पर इल्जाम है कि पहलगाम ने इस वाक़े को उनके आयमा पर पेश किया गया या उन्होंने पेश किया, जिसके बाद वो मुल्क जो है बारह कहता है कि उन्होंने कोई इस तरह की हरकत नहीं की है। लेकिन अब चूंकि उन्हें दिफाई लाइन पे है और जो भारत की सीमाएं हैं वो जब भी करना होगा, मुझे लगता है कि जो दोनों मुल्कों के बीच में इंटरनेशनल बॉर्डर्स या लाइन ऑफ कंट्रोल या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है दोनों मुल्कों के बीच में, चूंकि राजनाथ सिंह अगली चौकियों का दौरा जब करे थे आखिरी बार और वजीर दाखिला जब जम्मू कश्मीर से होके आए थे, तो यकीनन जदीद टेक्नोलॉजी के साथ आपके ड्रोन, आपके फजाई और जमीनी हुदूद में जो आपको बहुत ज्यादा मॉनिटरिंग के लिए इक्विपमेंट लगवाने थे वो लगवा चुके हैं। और ये सारी चीजें सूरत हाल जो इस वक्त सरहद पे है, बिल्कुल तनाव तो है, लेकिन इस तरह की कोई भी निशानदेही कहीं पर नजर नहीं आती है कि हम कहें कि शायद रातों रात दोनों मुल्कों के बीच में कोई तस्वीर बदलने वाली है। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, आपने अपने कीमती वक्त दिया। तो जितने भी नाज़रीन इस वक्त हमें देख रहे हैं उन तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से डराया जा रहा है, जिस तरीके से कहीं ना कहीं काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, काफ़ी सारे ऐसे सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं जहां पे कहीं ना कहीं लोगों को जो है गलत तरीके से
مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے باتوں کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے، تو فی الحال حالات ویسے نہیں ہیں کہ آپ ڈریں، بالکل سکون سے رہیے، اور جو بھی خبر تھی، جو بھی اپڈیٹ تھی دن بھر کی، یا پھر ہمسائے ملک پاکستان کو لے کر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کیسے تعلقات ابھی چل رہے ہیں یا پھر کیسا ماحول ہے، وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی. بنے رہیے دا ٹائپ رائٹر کے ساتھ.